Hello guys, welcome back to another video of Football and Chill. Today with me is Aditya from, he's a Chelsea fan. Damanpreet, as you all know from the first episode, is back. And Ambikesh, a Liverpool fan. How you all guys are doing? एकदम झकास आफ्टर ये वाले मैच वीक के After बाद भाई Not sure about Daman though. हाँ तब भी वो झकास बोल रहा है. भाई इट्स अब यूज्ड टू हो गया, मतलब इट्स नथिंग न्यू. हाँ अरे उन्हें टॉप 6 आने से मतलब है, उन्हें ऐसा कोई बड़े क्लब को दुख तो होता है. इस साल तो भाई टॉप 6 भी कहा. Daman, do you really think Arsenal can finish in the top 6? Sure bro, this time for sure. Top 4, not even top 6, top 4. Look who's asking. Look who's asking. नहीं यार, चलो let's. I am pretty sure about Man U that we are gonna be in the title contenders. Let's talk about our first game, which is Liverpool versus Arsenal. Liverpool won 3-1. What do you wanna say? Ambikesh, first you tell us. What do you wanna say? What should I say? Liverpool played brilliantly, dominated the whole game, scored 3 wonderful goals. I mean, we deserved the game. As simple as that. वंडरफुल तो नहीं थे भाई, टैप इन थे. टैप इन नहीं भाई, बोलने वाला था. टैप इन मारे, वंडरफुल क्या था? See, Yeah, Liverpool dominated the game. End of the day, they took all the 3 points. That's all that matters. That all doesn't matter. No, they played really well. I mean, 3 points. वो बोले जैसे passes were good. डोमिनेटिंग थे if तभी you- तो टैप इन के ऑप्शन वो आए, इतने इजी टैप इन थे. अब नवजोत बोले in the end 3 points is all that matters, तो मैं समझ सकता हूँ. मैं तो भाई गेम से The भाई 3 मैं तो point वो does भी नहीं बोल matter. सकता यार इस मैच वीक के बाद. तुम वो भी नहीं बोल सकते, तुम 3 गोल पहले हाफ में खा जाते. अरे भाई तो कौन सी टीम से? वेस्ट ब्रॉम. पता भी नहीं है. मतलब I pity Chelsea, basically. No, I pity Chelsea. but let me just say this. I really rate Arsenal this season. Arteta has been really nice, and one thing that I really liked about the game of Arsenal was they were trying to play out from the back, जो कि usually वो नहीं करेंगे against Liverpool. I mean, the kind of pressing that Liverpool do, किसी भी टीम के लिए वो करना वो बहुत बड़ी bravery है, and they did it, and they did it to a very good level. So side, yes. I really congratulate them. And in the first half, they did really well with the playing from the back. In the first half, they did really well. If Lacazette would have scored that second goal, then I think it would have been a good match till the end. But once that third goal went in, our players just lost the hope, and they're like, "चलो अब हो गया, हम निपट ही गए, क्या करें हम?" But एक चीज भी याद ध्यान में रखनी पड़ेगी that all Arsenal fans, no one is like depressed कि यार हमारी टीम कहीं नहीं जा रही है and stuff. They know that it's a long road, but it's part of the process. Exactly. It's part of the process, bro. Exactly. It will take some time. अभी वो पहली हार है ना, अभी दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, चौथी आएगी, तब तक they will lose their shit and Arteta out. Arteta out, man. आर्सेनल फैंस को आदत हो गई है. आर्सेनल फैंस को आदत हो गई है इस चीज की. नहीं, because बिल्कुल, क्योंकि मैं इस साल why I don't think Arsenal will finish in the top 6 is because I want to see how many top 6 clubs that Arsenal can beat this season. That will actually simplify their position in the table. Playing without fans. देख लो ना भाई, शेफील्ड जब तक फैंस थे इतना सही कर रही थी, जब से ये कोरोना वाला वो शेफील्ड होम हो अवे हो हर जगह उनका एक ही जैसा. हाँ, इस साल तो लग रहा है. But this year the Premier League should be very afraid of Leeds. They've got a very good team this year. मैं एक चीज और ऐड करूंगा. इस साल सबकी लेने वाले हैं वो. सबकी. ये स्पेशली यूनाइटेड की तो लेंगे ही लेंगे. नहीं, यूनाइटेड की तो लेंगे ही लेंगे. अपनी चिंता करो, तुम्हारे खिलाफ तो 7-8 गोल मार देंगे. इस तरीके से वो खेलते हैं. अंबिकेश का मैं एक पैटर्न बता. दमन तू सच बता. नहीं दमन तू सॉरी नवजोत तू सच बता, तुझे इतना कॉन्फिडेंस है यूनाइटेड पे? आई मीन लास्ट गेम देखने के बाद भी? नहीं भाई वो तो ब्रूनो
पिछला सीजन ये पिछला गेम इतना ज्यादा कंसीड करते, अगर वो बाहर पे नहीं मारते तो 6-7 गोल तो थे। तो 2 गोल तो वैसे ही चले गए, 5 बार बाहर पे लगी, तो वो 8 कितने हुए, 5 2 6 7 गोल पड़ते ही पड़ते वो। मेरे को भरोसा तो नहीं है। ब्रूनो फर्नांडिस ने ना गलत स्पोर्ट चूज कर दिया। ही शुड गो फॉर डाइविंग, यू नो। But he didn't dive in the match. It was a clear handball. So one more thing I wanna say, अंबिकेश हर मैच के बाद एक ही चीज बोलता है, लिवरपूल का जो भी मैच होता है उसके बाद, जो लिवरपूल के अगेंस्ट टीम के लिए, हाँ दे प्लेड वेल, इट्स अ गुड टीम। तुम ऐसे सहानुभूति मत दो ना दूसरों को, ठीक है? तुम अच्छा खेलते हो, the boys played well. The boys played well बोल करके सबको। नहीं, मैं कोई सहानुभूति, एक तो मुझे पता नहीं क्या होता है सहानुभूति, बट मैं वो नहीं दे रहा। I mean, to put it simply, लीड्स वाला गेम अच्छा था, लीड्स लिवरपूल वाला गेम। बहुत चेल्सी वाला तो फिर रेड कार्ड हो गया था, तो उनको डिफेंड ही करना था, उसमें भी केपा ने चेल्सी वालों पे मुझे, चेल्सी वालों पे अब दया आती है मुझे भी आती है, सबको बेचारे बच्चे रहते हैं ना, कि मतलब ठीक है यार, ठीक है खेलने दो। अभी होता है ना जब सीनियर्स का मैच हो जाता है प्रैक्टिस में, फिर बच्चों को बुलाते हैं खेलने के लिए, हाँ खेल लो तुम लोग 10 मिनट खेल लो। 5-10 मिनट नहीं करेंगे कुछ तो गोलकीपर के बिना कौन सी टीम जीती है? गोलकीपर के बिना तो भी वो तो है भाई। केपा आई थिंक ही इज अ वेस्ट ऑफ मनी यार, मतलब कोई सेंस नहीं मिला वो। बट दमन बेकार है। हाँ। But Daman, do you wanna say something about Arsenal performance in the past 3 matches you saw? यार आर्सेनल, इट्स अ टोटली डिफरेंट गेम राइट नाउ। पहले क्या था, आर्सेनल वाज बेसिकली पोजेशन रखो, बिल्ड अप। अब नाउ वी स्टार्टेड प्रेसिंग, और you can see the similarity in City's and Arsenal's game. They both play out from the back. Arteta has, grabbed that Guardiola का philosophy. He's playing out from the back. Trust me, जब से Arteta आया है, we have conceded very less goals, and we have put in a lot of goals. Why, you should have seen the FA Cup final this year. मेरे पास भी एक क्वेश्चन है। How much do you think the 2 signings that Arsenal are looking for, are they important? The Aurora and who's the other guy? Partey. Yeah. I really think we need a good midfielder. Doesn't matter whether it's Partey or Aurora. दोनों में से एक तो चाहिए ही चाहिए, बिकॉज सी मिडफील्ड में हमारे पास कौन है, सिबायोस एंड दोनों ज़ाका, हाँ एलनेनी तो गिन मत उसको, इज जस्ट अ बैकअप ऑप्शन, ठीक है। ज़ाका के साथ दिक्कत ये है, ही इज वेरी रिस्की। वो 2 गेम में लगातार येलो खा लेगा, फिर एलनेनी को खिलाना पड़ेगा उसकी जगह। एंड विद सिबायोस ऑन हिज डे। नहीं, बट what about Ozil? भाई यार, what's happening with Ozil? नाम मतलब दिल टूट जाता है भाई। Ozil is not good exactly, enough मतलब Capital One Cup. Almost नहीं, no, उसको नहीं खिलाए ना Capital One Cup की भी टीम में। I think उधर पॉलिटिक्स है यार। देख, उसके साथ पॉलिटिक्स है। ओजिल के साथ मैं बताऊं क्या प्रॉब्लम है। He doesn't fit into the playing style what Arteta wants. Arteta wants fast game. उसको चाहिए फास्ट, एकदम इंस्टेंट वाला। क्योंकि मोस्टली देखो आप इस when you play the pressing game, अम्बिकेश तुझे पता ही होगा, काउंटर में ही पूरे गोल्स होते हैं। Ozil was a possession guy. He can create a chance out of nothing, but he doesn't have that stamina, or he's not that fast enough to play in that kind of a game. वो ऐसे गेम में ना हक देगा। हाँ, वो नहीं, इसीलिए आई थिंक आर्टेटा एक्चुअली कुछ लोग ऐसा मैंने पढ़ा था कहीं दैट, क्योंकि अभी ओजिल ने कुछ चाइना के अगेंस्ट कुछ बोला था, वहाँ के मुस्लिम्स के अगेंस्ट। हाँ, मुस्लिम्स के अगेंस्ट चाइनीज इन्वेस्टर्स ने प्रेशराइज किया आर्सेनल को। पता नहीं कितना सच है। अरे इट्स ऑल अ कॉन्स्पिरेसी। द बेसिक थिंग इज he doesn't fit into that style of a play. अब तू देखना भाई, ओजिल अगर तू नॉर्मल मैचेस में देखता था कितना जल्दी थक जाता था। He was called lazy. ओजिल है सबका बाप, but he doesn't fit into the style. No, और उसको ये भी पता है वही तो
आज की डेट में जैसे तूने कहा ना कि दिल टूट जाता है, एकदम मैं एग्री करता हूँ। हाँ भाई यार, ओजिल जैसा प्लेयर नहीं खेलता है वेस्ट तो ऑफ अ टैलेंट, वेस्ट ऑफ अ टैलेंट। और ओजिल को ये भी पता है कि नाउ इज पास्ट इज प्राइम। अब उसको जितना पैसा आर्सेनल दे रही है उतना पैसा कोई क्लब नहीं देगा, कोई भी। दैट इज व्हाई ही जस्ट वांट हिज कॉन्ट्रैक्ट टू रन आउट नाउ। इफ अगर उसकी जगह कोई भी होता तो ये करता भाई। जब आपका टाइम निकल चुका है तो आप क्या ही करोगे, अब यू जस्ट वेट फॉर योर कॉन्ट्रैक्ट टू रन आउट। सही बात है, सही बात है। I think that's a lot of about Arsenal and Liverpool. And you want to say something? ऑबामेयांग का भी तो ये सेम, इसीलिए नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। कुछ ओबा इज ऑन अ नेक्स्ट लेवल ब्रो, मतलब वो तो सही है, बट खतरनाक है प्लेयर हो। इतना पैसा फिर भी नहीं देंगे जितना he's a golden boot winner guys यार। अब तो वो गोल्डन बूट विनर है, अब तो that's for sure। भाई ओबा के आगे क्वेश्चन ही नहीं है। इफ आर्सेनल छोड़, ओबा कोई भी क्लब में होता ना और इस फॉर्म में होता, और कोई भी क्लब उसको जाने देता, फैंस ने तो माँ बहन एक कर देनी थी क्लब की। बार्सिलोना जो आपका सबसे अरे बार्सिलोना वो बिहाइंड हिम, यूवेंटस वो बिहाइंड हिम कि भाई हु डजंट वांट अ क्वालिटी प्लेयर यार, हु डजंट वांट भाई। अब दिक्कत क्या थी आर्सेनल के साथ, above 30 भाई आर्सेनल के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी पास्ट इयर्स में? फैब्रिगास बेच दिया, नाजरी बेच दिया, वैन पर्सी बेच दिया। भाई जो तुम्हारे अच्छे प्लेयर हैं, जो परफॉर्म कर रहे हैं, आप उन्हीं को बेचे जा रहे हैं। हाँ क्या बोला? वैन पर्सी बेच दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ था? ओ हाँ, वैन पर्सी तो इसलिए बेचा था क्योंकि उसको प्रीमियर लीग टाइटल जीतना था। किसके साथ? मैनचेस्टर यूनाइटेड। तुम अब पास्ट में ही जियो, जो लिवरपूल को जितना तुमने क्रिटिसाइज किया ना लाइफ लॉन्ग, अब वहीं पे आ गए एकदम। अरे ये अभी पता है यूनाइटेड, मैं 50 साल बाद लीग नहीं जीत रहा। मुकेश नोज द फील, इसीलिए बोल रहा है। मुकेश नोज 50 साल बाद लीग नहीं जीत रहा। चलो गाइस, आई हैव टू गो नाउ। चलो ठीक है, थैंक यू गाइस, कैरी ऑन। ठीक है, चलो बाय ब्रो। अंबिकेश, नेक्स्ट वीक रिवेंज, डोंट फॉरगेट। कैपिटल वन कप में मैच है क्या? Let's move on and talk about the Brighton versus Manchester United. Brighton 2, Manchester United 3. I think Brighton. नवजोत रैंट नहीं यार, नहीं यार मैं खुश हूँ यार, कम से कम हम लोग ने, दिस वाज आवर फर्स्ट विन इन द प्रीमियर लीग। मैं तो बहुत खुश हूँ यार। हम एक तो जीत गए तो इसी से खुश हूँ। क्या ही रैंट करना है। बट अभी बिफोर यू केम, me and Aditya were just talking about कि this is the same side in the previous season with the same back four and the goalkeeper who were doing so well had 12 or 13 clean sheets, and this year they are not even looking like they can even take a clean sheet in one game. So this is very threatening to watch for a Manchester United fan. I mean, how they are playing. Wan-Bissaka is very good in one-on-one defending, but his man marking again at the far post. Solly March took four or five shots, and three of them hit the bar. One of them were outside, and the one he scored. So that just shows ki the defense is not that good. Midfield is also again. I feel for Brighton though. I also feel for Brighton. They had a very good game और हम जीत गए। बस फाइनल विसल के बाद हारना यार, ड्रॉ करा के फिर फाइनल विसल के बाद हारना। It's ridiculous. ये मजाक चल रहा है क्या? मतलब फाइनल विसल, एक तो it shouldn't have ever gone to 7th minute. पता नहीं उसने पहले क्यों नहीं विसल किया। वो मुझे सच बताऊं तो मुझे खुद नहीं समझ आया कि उसने कॉर्नर कैसे दे दिया। मुझे नहीं पता था वो कॉर्नर, मुझे लगा उसने विसल ब्लो कर दी, कॉर्नर नहीं होगा, लेकिन उन्होंने शुड हैव आइडियली उसको कर देना चाहिए था भाई। और रेफरी ने मैन्यू प्लेयर्स की बात क्यों सुनी? वो मतलब उसके चारों नहीं, उसको VAR से कॉल आया था। नहीं उसको VAR से कॉल आया कि शायद नहीं। आई एग्री एक बार हैंड हो जाता है, आफ्टर दैट आई डोंट थिंक कि उस पे मतलब ज्यादा कोई डाउट कर सकता है। बट the only problem that I have is it shouldn't have gone to the 7th minute at all. Talking about handball, let's go to the another match. Tottenham versus Newcastle 1-1. 97th minute they scored a goal from a handball. Was not even a handball.
वो उसका न्यूकासल का मैनेजर स्टीव ब्रूस कह रहा है कि दैट्स नॉट अ हैंडबॉल, हाउ कैन यू गिव अ हैंडबॉल। वो अपने पोस्ट इंटरव्यू में बोला कि दे मेड अ डिसीजन व्हिच वेंट आवर वे। हाँ तो वो तो ऑब्वियसली नहीं, वो हैंडबॉल नहीं था यार। वो एरिक डायर वाज नॉट इवन लुकिंग एट द बॉल, और उसका हाथ, वो तो बॉडी मूवमेंट था, बॉडी मूवमेंट था, उस पे वो चला गया। पर उसके बाद भी that's not good what is happening in the VAR. It was shameful. हाँ, It was shameful, as clear as it can get. I mean, वो जो मैंने पिछली बार जो मैंने रूल बताया था बेसिकली कि आपके ये स्लीव्स के नीचे जितनी बार भी बॉल लगेगी हाथ में, वो हैंड बॉल है। वो रिगार्ड नहीं होगा कि आपका हैंड पोजीशन क्या था। इफ यू आर क्लोज टू योर बॉडी, दैट्स ओके। बट वो भी उन लोगों ने क्रिस्टल पैलेस और एवर्टन वाले मैच में, दैट आल्सो हैपेंड वेयर क्रिस्टल पैलेस वन एंड एवर्टन स्कोर्ड 2, तो वहां पे भी पेनल्टी में सेम हुआ। वो हाथ उनके बॉडी के पास था, लेकिन they gave the penalty. I think the pushback that Premier League is receiving right now, they are gonna do something. Yeah. I mean, yeah, it's utter shambles. People lose their interest in watching the game. मतलब कुछ भी, मतलब सेम हैंडबॉल 2 गेम में होती है, एक गेम में पेनल्टी मिलती है, एक गेम में नहीं मिलती। एक गेम में नहीं मिली। मतलब मैं बोल चेल्सी वाले गेम में, मैं आई एम नॉट like saying anything, the decision went our way, but it was almost the same handball with Havertz na, Havertz ke saath hua tha। Let's no, before going to Chelsea match, let's talk about the Everton and the Crystal Palace game, because Everton are right now 5 match unbeaten this season, and this is their like a first time they have done this after 20 years something, and this is incredible. I told you, Ancelotti game, this bro. This is like their first, I think what I heard in the game was that this is the first time ever Everton has won their first 3 games. First 3 games, and first time they have done this in 5 games, won their 5 first games. This is, I told you, Ambikesh, if you remember, Ancelotti, bro. It was good. It's not incredible. 3 game, I mean, come on, 3 game अच्छा खेले. I give them the credit, लेकिन अभी से कि आई एम विंडिकेटेड ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं, बट आई थिंक दे आर डूइंग गुड। But their team is also of course, I don't deny that, but incredible and they'll roll over ऐसा तो अभी नहीं कह सकते। I mean, they might, but 3 गेम्स में तो किसी लीग के लिए नहीं कह सकते एक्सेप्ट बुंडेसलीगा। वहां भी बायर्न हार गई यार। बायर्न लॉस्ट टू हैम्बर्ग एसवी। अरे वही तो बोल रहा हूँ, 3 गेम के बाद भी तुम ये कह सकते हो कि बायर्न नहीं जीतेगी। बायर्न नहीं जीतेगी। हाँ। Moving on from the Everton versus Crystal Palace. Let me put it on record. Everton are playing really good. I'm not denying that. Just saying कि अभी सिर्फ 3 games हैं. Let's wait. Let's hope कि वो और अच्छा खेलें, टॉप 6 में ब्रीच करे, यूनाइटेड नीचे जाए। मेरे से ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा। बिल्कुल, लिवरपूल को इस बार हराएंगे वो, इस बार होम और अवे दोनों। तुम्हारी डाबी का नाम क्या होता है एमफील्ड वाली? मर्सीसाइड डाबी में इस बार दोनों बार एवर्टन हराएगी लिवरपूल को। मूविंग ऑन, let's just move our attention from Everton to Manchester City and just take a moment and just laugh at them as loud as we can, because they have just lost 5-2 to Leicester City. Yes, Ambikesh, what you were talking about? तो Man City, I think बेकार खेले. They are really lacking someone in their defense. Laporte, they desperately missed him. And I'm pretty sure that Pep is targeting someone very badly now. कि खत्म होने से पहले window, he desperately wants to some. They have signed Ruben Dias. But no, I think he कौन, मैंने नहीं सुना इसके बारे में। बेनफिका के लिए खेलता है, पहले वुल्व्स में खेलता था। Okay, but ठीक है, but considering I'm actually very scared of City. मतलब जिस तरह से वो खेलते हैं, I just don't want to jinx by criticizing them. इसलिए just let it be. अच्छा खेली। नहीं, अच्छा तो नहीं खेले भाई। Let's move on to our final match of this week. So it's gonna be West Brom versus Chelsea. So Chelsea
with not playing with Kepa, and they started Thiago Silva as their captain. First of all, I want to just ask Adi that, Adi, do you really think Thiago Silva playing his second match for Chelsea, and he was the captain? Yeah, second. The first match was in the League Carabao. Cup only, not even the Premier League. Huh. Yeah, this was his debut game for the Premier Premier League, League, and they made him captain. Yeah. This is, I think, Out of I don't know the processing about that. Who is even asking this? तुमने भी तो मैगवायर को कैप्टन बना के रखा हुआ, पता नहीं वो भी तो आया ही था बस. नहीं वो नहीं, Maguire became a captain like a long time after he started playing for Manchester United. Not a long time, come on. हाँ नहीं, he was not a long time. But still, long time मतलब इतना नहीं कि पहले ही मैच से उसको बना दिया था. कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है. देखो, और वो प्रीमियर लीग खेल रहा है इंग्लैंड के लिए. Considering both of these captainship. Actually, the main difference is ये सीजन में किसी को प्री सीजन खेलने को नहीं मिला है. ये सारी न्यू साइनिंग्स हैं. इनको डायरेक्टली टीम में डाल दिया, ऊपर से इतनी बड़ी ड्यूटी भी दे दी, और ऊपर से फिर वो देख रहा हो कि कैसे मिसेस, कैसे गोल दे रहा है ओपोनेंट्स को. अलोंसो इतना मतलब पुराना प्लेयर है चेल्सी का. अलोंसो ने 2 गोल करवा दिए. अलोंसो ने 2 गोल करवाए. सेकंड गोल एक गोल थियागो सिल्वा था. हाँ, एक गोल जो थियागो सिल्वा की मिस्टेक से हुआ था. ही कुड नॉट पास द बॉल. So that was the no उसके पैर में बॉल आई थी. फर्स्ट टच मतलब उसने बॉल होल्ड ही नहीं कर पाया, उसके पैर के नीचे से बॉल निकल गई. And Callum Robinson पास भी नहीं करना था, बॉल उसके पास आ रही थी. Ziyech और चिलवेल कब वापस आ रहे हैं? Ziyech और चिलवेल आ रहे हैं. मैं क्या बताऊं, like it's टाइम लगेगा. They are still in the team, but हाँ टाइम लगेगा. एक्चुअली मेन बात ये हो गया ना कि साइन तो कर लिया, बट इस साल कोई प्री सीजन नहीं हुआ. बाकी जो टीम्स हैं वो सारी ऑलमोस्ट सेम टीम्स हैं. चेल्सी का पूरा रिफॉर्मेशन हो गया है ना. तो ऐसे अचानक से पूरी टीम में तो इंजेक्ट नहीं कर सकते. एक दो प्लेयर चलता है, जैसे कि विलियन को हटा के हेवर्ट्स को ला दिया है ना, और इधर वो भी आ गया है ना. I don't think this should be an excuse. Because it's not an excuse. नहीं उसको मालूम था ना. नहीं उसको मालूम था कि this is how it's gonna be, so उसको उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए था. But yeah, we'll see what happens afterwards. But अभी तो directly they are gonna improve, that's for sure. वो तो होना ही है, पर अभी the point is कि इतने सारे young player ले आए, नई signings ले आए, और फिर उसके बाद 6-7 साइनिंग लाने के बाद वो खेले भी नहीं एक भी मैच. मतलब प्री सीजन में भी वो सारे प्लेयर एक साथ खेल भी नहीं पाए. जो प्री सीजन एक मैच हुआ चेल्सी का प्री सीजन, उसमें खिलाए थे. एक्चुअली सबको खिलाए थे. और टीमो वर्नर खेले थे, पर वो भी उतना अच्छा नहीं है. हैवर्ट्स तो उसके बाद साइन हुआ था, तो वही प्रॉब्लम तो है. हैवर्ट्स और सिल्वा भी उसके बाद ही साइन हुआ है. बट आई थिंक in the time period वो सब एक साथ जेलप हो जाएंगे और they will start playing really good. That's what I think, and that's why और अभी वो मेंडी भी हैवर्ट्स और वर्नर का तो सही है. हैवर्ट्स और वर्नर तो सही है, उनका मतलब थोड़ा वो हो गया है अभी, है ना. Yeah, that's what my understanding. Do you think Havertz is playing well? Because I backed him a lot. Ambikesh, अगर तेरे को याद हो तो. But I am not seeing Havertz playing that well, like how I saw him playing. इतना याद है तूने चेल्सी को बैक किया था प्रीमियर लीग जीतने के लिए, तो इससे ज्यादा कोई बैक नहीं कर सकता. एक्चुअली बात ये है कि Havertz ये वाला गेम हाँ सही खेला था. This game he played good actually. I mean the new as a new team he should मतलब ठीक है, जैसा पहले खेलता था उतना अच्छा नहीं, but definitely his game is improving. पिछले कैराबाओ में we all know like he is gonna improve. हाँ कैराबाओ में हैट्रिक मारी थी. और वर्नर की देख रहे हो, वर्नर के रन्स देख रहे हो भाई, इतनी अच्छी स्प्रिंट है उसकी, बॉल लेके निकल जाता है. सही खेल रहे दोनों. आएंगे अभी थोड़ा समय टाइम लगेगा. I already told Ambikesh and everyone out there that he's a जर्मनी का जेमी वार्डी है. वो उसके रन्स वैसे ही होते हैं, उसका फिनिश वैसा ही है, वो वैसे ही खेलता है.
But not playing with Kepa and still you conceded 3 goals with a new defense. Actually, this was not Caballero's fault. We cannot say it was Caballero's fault. It was all defenders' fault. All 3 of the goals. थर्ड गोल जो था है ना, बार्टली ने जो मारा, अलोंसो उसको मैन टू मैन मार्क कर रहा था, फिर अलोंसो खड़ा था वहां पे, बार्टली उसके सामने से घूम के पीछे से आके गोल कर भी दिया, और अलोंसो खड़ा है वहीं पे। अब मैन टू मैन मार्किंग में क्या उसको गोल मारने की गोलकीपर का कुछ नहीं, उसको गोल मारने की पड़ी रहती है, वो डिफेंस भूल जाता है। हाँ, और भाई वो देखना क्या हेडर से असिस्ट कर रहा है वो ओपोनेंट्स को, पहला गोल वो ऐसा ही है वो। बट ठीक है, that is the problem with Marco Alonso. That's why they signed Chilwell, because they knew that he's not that well in defensively. But again, Chilwell is also not that good at defensive points. तो पता नहीं अब क्या होता है, देखते हैं। Let's hope that he's better. I think Marcos Alonso he was a part. He was mainly meant for that left wing back position. हाँ, wing back position. Yeah. 3-5-2 में वो खेलता है, तो he plays well. तो वहाँ पे थोड़ा उसकी डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी कम हो जाती थी, बट यहाँ पे अब उन्होंने फॉर्मेशन चेंज किया हुआ है, तो he is vulnerable. I think इसीलिए चिलवेल थोड़ा डिफेंसिव खेलता भी, और उसका हेडर भी चिलवेल का थोड़ा अच्छा ही है, हेडिंग प्रोग्रेस सही है, हेडिंग भी अच्छी है, उसकी क्रॉसिंग अच्छी है, उसकी शूटिंग अच्छी है। बट पता नहीं, I like the point कि तूने हेडिंग पे इंसिस्ट किया यहाँ पे कि हेडिंग उसकी अच्छी है। मार्कस अलोंसो नहीं, वो तो अब देख, जो है तो है, डिफेंस नहीं होगा बट हेडिंग तो अच्छी है। ठीक है, गोल खाएंगे तो गोल कर भी लेंगे, जैसा ही इस गेम में हुआ था, बट ये चाहता हूँ कि जितने गोल खाए उससे ज्यादा गोल करे बस। हाँ, मतलब मेरी थ्योरी थी कि अगर चेल्सी 3 गोल खाएगी तो 5 गोल मारेगी, वो 2 कम रह गए। हाँ, पर कोई बात नहीं, एक आध मैच में चलता है। फर्स्ट हाफ के वही कम रह जाते तो हार जाते गेम। चलो, भाई लास्ट मिनट में मारा यार, सही था, अच्छा गेम था। मुझे लास्ट सेकंड हाफ बहुत अच्छा लगा, सेकंड हाफ देखने में बहुत पूरा गेम ही प्रेस किया उन्होंने, बट सेकंड गेम में थोड़ा सक्सेस मिला जब वो माउंट ने बहुत शानदार गोल किया। वो माउंट गोल वाज अमेजिंग। माउंट गोल वाज अमेजिंग। वो क्या शॉट लेता है यार, वो थोड़ा सा उसका डिप आता है आखिरी में, he takes ridiculous shots. I think that's gonna be it for this episode. Thank you, Aditya, for coming, and Ambikesh, as always, it's a pleasure doing shows with you. Thank you all for watching this episode. If you like this episode, please like the video, share the video, and subscribe to the channel and hit that bell icon. And if you wanna support us, there is a link in the description box below. Go and support, give us whatever amount you want us to give, and that's it. And if you want to be a part of this show, then you can simply go on to my Instagram handle, that's in the description box below, and you can get a chance to come on the show and support your team if you want to. And that's it for this episode. Thank you and take care.